وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ یہ میری مجاہد کمانڈو شیروان سے پہلی ملاقات تھی۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ رومال میں چھپا رکھا تھا۔ وہ چوڑے قد کاٹ کا ایک جوان آدمی تھا۔ آنکھیں چیتے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سٹین گن اپنے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ کمانڈو کی وردی میں تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں کمال شاہ نے میرے پاس بھیجا ہے؟ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پہلے مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تم ہی کمانڈر لیڈر شیروان ہو۔ اس کے تینوں ساتھی وہیں موجود تھے۔ غار میں 2-3 سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے بڑا معقول سوال کیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا، پھر کہا، دلی میں تم کس آدمی سے ملے تھے؟ میں نے گل خان کا نام لے دیا۔ کمانڈو شیروان نے دوسرا سوال کیا، جموں میں کس کے پاس ٹھہرے تھے؟ میں نے صادق کا نام لیا تو شیروان بولا، اس نے تمہیں میری اور اپنی شناخت کے لیے کوئی خفیہ لفظ ضرور بتایا ہوگا، کیا تم وہ بتا سکتے ہو؟ میں نے صادق کا بتایا ہوا اردو کا شعر پڑھ کر سنایا تو کمانڈو شیروان نے پوچھا، جس شاعر کا یہ شعر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس سوال سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کشمیری کمانڈو شیروان ہی ہے۔ شیروان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں صحیح آدمی ہوں اور مجھے کمال شاہ صاحب نے ہی گل خان اور جموں والے صادق صاحب کی رہنمائی میں اس کے پاس بھیجا ہے۔ کمانڈو شیروان مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنے آدمی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی یقین آ جانا چاہیے کہ تم کمانڈو شیروان کے سامنے بیٹھے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، مجھے یقین آ گیا ہے، اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کشمیری کمانڈو شیروان نے اٹھ کر مجھ سے مصافحہ کیا، پھر گلے ملا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی پر جاؤ اور ہمارے لیے چائے بھجوا دو۔ اب غار میں اور کمانڈو شیروان دونوں اکیلے تھے۔ میری جیب سے انڈین سیکرٹ پولیس کا خاص نمبر والا جو کارڈ نکلا تھا، وہ کارڈ اور اسپرو ٹیبلٹ بم کی گولیوں والا لفافہ کمانڈو شیروان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے مجاہد میری تلاشی لینے کے بعد یہ چیزیں اس کے حوالے کر چکے تھے۔ کمانڈو شیروان نے اسپرو کی گولیوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو سر درد کی گولی ہے، مگر یہ کارڈ پر کس کا نمبر لکھا ہوا ہے؟ میں کشمیری کمانڈو شیروان سے ان چیزوں کا راز نہیں چھپا سکتا تھا۔ میں نے دونوں باتوں کی اصل حقیقت بتا دی۔ انڈین سیکرٹ پولیس کے خفیہ نمبر والا کارڈ دیکھ کر وہ خوش ہوا، کہنے لگا، یہ نمبر بہت کام آ سکتا ہے۔ باقی یہ اسپرو ٹیبلٹ بم والی گولیاں خاص بھارتی فوجی اور پولیس افسروں کو ٹھکانے لگانے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں، لیکن یہ گولی کسی کو کھلانے کے لیے اس شخص کا اعتماد حاصل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ایسا تو کسی خاص مشن میں ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ گولیاں تم اپنے پاس رکھو۔ پھر کمانڈو شیروان نے وہ کاغذ دیکھا جس پر بظاہر پلاؤ وغیرہ بنانے کے مسالوں کا نسخہ تھا۔ اس کے بارے میں نے اسے بتایا کہ یہ اسپرو بم بنانے کا فارمولہ ہے تو اس گل خان کی فنی مہارت کی بڑی تعریف کی۔ کہنے لگا، یہ نسخہ ہم یہاں محفوظ جگہ پر سنبھال کر رکھیں گے، گولیاں تم اپنے پاس ہی رکھو کیونکہ آئندہ کسی کمانڈو مشن میں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کمانڈو شیروان نے مجھے کشمیر کے محاذ کی ساری صورتحال سمجھائی اور بتایا کہ کہاں کہاں انڈین ملٹری فورس نے اپنے مورچے اور فیلڈ ہیڈ کوارٹر بنا رکھے ہیں۔ اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں جموں رائفلز کی آرٹلری ریجیمنٹ نے پہاڑی پر کچھ میڈیم توپیں نصب کر رکھی ہیں۔ یہ گن پوسٹیں ہم ابھی تک تباہ نہیں کر سکے۔ ان کے گولے ہمارے خفیہ ٹھکانوں کی نشاندہی پر گرتے ہیں اور ہمیں شدید نقصان اٹھا کر وہاں سے کسی دوسری جگہ فرار ہونا پڑتا ہے۔ ان توپوں کی شیلنگ سے کئی بار ہمارے ایمونیشن کے ذخیرے بھی تباہ ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، انڈین فوج کو آپ لوگوں کے خفیہ ٹھکانوں کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ اس کا سدباب کیوں نہیں کرتے؟ کمانڈو شیروان بولا، ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی سفید کپڑوں میں مسلمانوں کا بھیس بدل کر ساری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح انہیں ہمارے خفیہ ٹھکانوں کا سراغ مل جاتا ہے اور ان پہاڑیوں پر لگی ہوئی توپیں وہاں گولہ باری شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے اسے کہا، آپ لوگ ان گن پوسٹوں کے عقب میں جا کر اپنا خفیہ ٹھکانہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ کمانڈر شیروان کہنے لگا، ایسا ہم کر تو سکتے ہیں مگر اس طرح ہم اپنے محاذ سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ہمیں یہاں رہ کر انڈین فوج کے کینوائے پر بھی اٹیک کرنا ہوتا ہے تاکہ وادی میں مقیم ڈوگرا ریجمنٹوں کو سپلائی نہ پہنچ سکے۔ ہم اس وادی میں کسی جگہ چھپے رہنے پر مجبور ہیں اور یہ ساری وادی اور اس کی پہاڑیاں انڈین آرٹلری ریجمنٹ کی توپوں کی زد میں ہیں۔ ان توپوں کو تباہ کرنے کے لیے ہماری کئی کمانڈو پارٹیاں رات کو جا چکی ہیں مگر کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ہمارے کئی جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہر حالت میں ان توپوں کو خاموش کرنا ہے۔ ایک مجاہد ہمارے لیے چائے لے کر آ گیا۔ یہ کشمیری سبز چائے تھی، ساتھ 2 پیالیاں اور نمکین کلچے بھی تھے۔ یہ نمکین کلچے چھوٹے سائز کے تھے اور میں نے پہلی بار کھائے۔
कश्मीरी चाय के साथ उनका जायका बड़ा मजेदार लगा। कश्मीरी कमांडो शेरवान ने नक्शे पर कागज लपेटकर एक तरफ रख दिया और कहा, इस पर हम कल बात करेंगे। फिर वो मुझसे कमांडो ट्रेनिंग की बातें करने लगा। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि मैंने कमांडो की फुल ट्रेनिंग ली हुई है। वो कहने लगा, कमाल शाह एक मर्द मोमिन है। उसने जितने मुजाहिदों को ट्रेनिंग देकर हमारे पास भेजा है, उन्होंने अपनी फन्नी महारत और जुर्रत से काम लेकर फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनमें से अक्सर कमांडो शहीद भी हो चुके हैं। वो अपने मिशन पर गए, टारगेट तो मार लिया मगर खुद वापस न आ सके। तुम्हें तो मालूम ही है, कमांडो जब किसी मिशन पर जाता है तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद बहुत कम होती है। वो खुद भी मौत को कबूल करके अपने मिशन पर रवाना होता है। फिर कमांडो शेरवान ने जहाद कश्मीर की मजीद तफसीलात बताईं और कहने लगा, हमारे हुर्रियत परस्त कश्मीरी मुजाहिद वादी और शहरों के हर महाज पर इंडियन फौज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई शहीद होता है तो 7-8 डोगरा फौजियों को जहन्नम में पहुंचाकर शहीद होता है। हम कश्मीरी कमांडो हैं। हमारा काम महाज से पीछे उन पहाड़ियों में ही रहकर इंडियन फौज की सप्लाई, कैनवॉय, उसके एम्युनिशन डिपुओं और दूसरी फौजी तंसीबात पर कमांडो अटैक करके उन्हें तबाह करना है। लेकिन इंडियन आर्टिलरी की ये तोपें हर जगह वादी में हमारा पीछा करती हैं। हमें किसी एक जगह बैठकर किसी मिशन की स्कीम तैयार नहीं करने देती। इस हाइड आउट में आए हुए हमें ज्यादा अरसा नहीं हुआ। अभी तक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को हमारे इस हाइड आउट का सुराग नहीं मिल सका। जैसे ही किसी जासूस ने इस पहाड़ी की निशानदही की, यहाँ तोपों की शेलिंग शुरू हो जाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन पहाड़ियों के अलावा और किसी तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क इन्हीं पहाड़ियों से गुजरती है और मिलिट्री सप्लाई और एमुनिशन लेकर फौजी ट्रक इसी सड़क पर से गुजरते हैं, जिन्हें हमें हर हालत में तबाह करना होता है। हम चाय भी पीते रहे और साथ साथ बातें भी करते रहे। कमांडो शेरवान की ज़बानी मुझे जहाद कश्मीर की तकरीबन हर महाज की तफसील मालूम हो गई। कमांडो शेरवान ने कहा, फायरिंग के वक्त सिर्फ 4 तोपें पॉइंट आउट हुई हैं और ये जुनूबी पहाड़ की ढलवान और चोटी पर फासले पर नस्ब हैं। मैं सुबह के वक्त तुम्हें ये जगह दूर से दिखाऊंगा। हमारी जितनी कमांडो पार्टियां इन तोपों को तबाह करने गई हैं, उनमें से सिर्फ एक मुजाहिद शदीद जख्मी हालत में किसी न किसी तरह वापस आने में कामयाब हुआ है। हमारे कई जवान कमांडो वापस नहीं आ सके, या तो वो शहीद हो गए या उन्हें भारतीय फौज ने पकड़ लिया। जो जख्मी मुजाहिद वापस आने में कामयाब हुआ था, उसने बताया है कि वो सिर्फ एक तोप के बंकर तक ही पहुंच सका था। ये तोप सीमेंट की मोटी दीवार के अंदर लगी हुई है और वहीं मशीन गन पोस्ट भी है, जो जरा से शक पड़ने पर अंधाधुंध गोलियों की बौछारें मारने लगती है। रात के 10 बजे मैंने कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान के साथ खाना खाया और वहीं पड़कर सो गया। दूसरे रोज काफी दिन चढ़े उठा। मेरे कई दिन की नींद पूरी हो गई थी। कमांडो चाहे जितना ही फौलाद का आदमी क्यों ना हो, एक वक्त आता है कि उसे भी अपनी नींद पूरी करनी होती है और अपने जिस्म की तवानाई बहाल करनी होती है। कमांडो लीडर शेरवान रात को 3 आदमियों के साथ किसी मिशन पर गया हुआ था। वो दोपहर के वक्त वापस आया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सर्दी अच्छी खासी थी। कमांडो ने मुझे बताया कि उसे खबर मिली थी कि इंडियन आर्म्स ब्रिगेड का एक कैनवॉय गुजरने वाला है। हम सारी रात एक जगह घात लगाकर बैठे रहे मगर कैनवॉय नहीं आया। मालूम होता है शेड्यूल में कोई तब्दीली हो गई होगी। तुम सुनाओ, रात अच्छी तरह से गुजरी? आओ बैठकर कुछ खा पी लें, फिर नए मिशन पर बात करते हैं। हमने खुफिया गार में बैठकर खाना खाया। उस वक्त वादी कश्मीर के आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। खाना खाने के बाद कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान ने कहा, तुम्हें ये लिबास तब्दील करना चाहिए, यहाँ मौसम सर्द है। उसने मेरे लिए कमांडो की नई वर्दी मंगवाई। ये कोई खास वर्दी नहीं थी। गहरे खाकी रंग की गर्म पतलून, गर्म कमीज और गर्म जैकेट थी। सर पर मैंने कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडोज की तरह स्याह रुमाल बांध लिया, मगर कमांडो शेरवान की तरह मैंने अपने मुंह को न ढांपा। जिस वक्त शेरवान को यकीन हो गया था कि मैं उनका अपना आदमी हूँ, तब उसने अपने मुंह के आगे से स्याह कपड़ा हटा दिया था। अब उसने भी सिर्फ अपने सर पर स्याह रुमाल बांधा हुआ था। हमने जोहर की नमाज गार में ही पढ़ी। नमाज के बाद हमने आज़ादी कश्मीर के लिए खुदा के हुजूर खुसूसी दुआ मांगी। गार के अंदर अंधेरा होने की वजह से लालटेन हर वक्त रोशन रहती थी। कमांडो शेरवान ने जेब में तह किया हुआ नक्शा निकाल कर अपने घुटनों पर फैलाया और भारतीय फौज ने जो जुनूबी पहाड़ पर तोपें लगा रखी थी, उनकी पोजीशन मुझे समझाने लगा। अभी उसको गुफ्तगू शुरू किए हुए 1 ही मिनट हुआ था कि हमें गार के बाहर एक खास किस्म की सीटी की आवाज सुनाई दी। हम दोनों समझ गए कि ये दुश्मन के तोप के गोले की आवाज है, जो अभी हमारे ऊपर आकर गिरेगा। मगर हम पहाड़ी के अंदर थे। इतने में गार के बाहर धमाका हुआ। उसके बाद गोलाबारी शुरू हो गई। गोले हमारे गार के इर्द गिर्द फट रहे थे। कमांडो शेरवान और मैं गार से बाहर निकल आए। हमारे दूसरे हुर्रियत परस्त कश्मीरी कमांडो साथी एक जगह से एम्युनिशन के बक्स निकाल कर गार के अकबी पहाड़ी की तरफ दौड़ कर ले जा रहे थे। सारी वादी तोपों की गोलाबारी से गूंज रही थी।
कमांडो शेरवान ने कहा, मालूम होता है दुश्मन को खबर मिल गई है कि हमारा नया हाइड आउट कहीं इस पहाड़ी में है, जल्दी से पीछे की तरफ निकलो। उन्होंने दूसरी जगह पहले से चुन रखी थी। ये वहाँ से दूर एक पहाड़ी के पीछे जो चट्टानें थीं, वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर वाला कुदरती गार था। उसके आगे से तेज रफ्तार पहाड़ी नदी गुजरती थी। चट्टान के गार तक जाने के लिए एक खुफिया रास्ता था। हम तोपों की गोलाबारी में वहाँ से अपना सारा असलहा और एमुनिशन निकाल कर नई जगह पर ले आए। जुनूबी पहाड़ की ढलान और चोटी पर लगी हुई भारतीय आर्टिलरी की चारों तोपें वक्फे वक्फे से पहाड़ी पर एक ही जगह गोले फायर करती रही। हमारा कोई कश्मीरी मुजाहिद न जख्मी हुआ न शहीद। नए चट्टानी गार में आकर शेरवान ने कहा, ये ड्रामा हमारे साथ पिछले कई महीनों से खेला जा रहा है। आसपास वादी में चरवाहों और किसानों के भेष में फिरते भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूसों को जरा हमारे ठिकाने का सुराग मिलता है तो ऊपर की पहाड़ियों से इस मकाम पर शेलिंग शुरू हो जाती है। भारतीय फौजी इस तरह खुद आकर छापा मारने से घबराते हैं। एक बार हमारे दूसरे महाज पर वो ऐसी गलती कर बैठे थे। हमारे हुर्रियत पसंद मुजाहिद हाइड आउट्स में पहले से तैयार बैठे थे। इंडियन फौज की प्लाटून जैसे ही पहाड़ी जंगल में दाखिल हुई, उन पर चट्टानों और दरख्तों के पीछे से गोलियों और ग्रेनेडों की बारिश शुरू हो गई। एक भी भारतीय फौजी बचकर नहीं गया था। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, मेरे साथ अपना एक कमांडो कर दो, मैं आज रात को ही ये तोपें तबाह करने के मिशन पर जाता हूँ। कमांडो शेरवान ने कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कमांडर, एक महाज पर एक वक्त में सिर्फ एक ही जर्नैल को लड़ना चाहिए। तुम यहाँ पीछे रहोगे, कोई मुजाहिद मेरे साथ कर देना जो इन पहाड़ी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बारिश भी हो रही है, खुदा करे कि ये बारिश रात भर जारी रहे। ऐसे खतरनाक कमांडो मिशन के लिए बारिश बड़ी फायदेमंद साबित होती है। नए हाइड आउट में आकर मैंने एक बार फिर नक्शे पर तोपों की पोजीशन का अंदाजा लगाया। उस वक्त ये तोपें शेलिंग कर रही थीं। मैंने एक टेकरी पर खड़े होकर सामने वाले पहाड़ की ढलान का गौर से मुशाहिदा किया। तोप जब गोला फायर करती है तो रात के वक्त उसमें से शोला निकलता दिखाई देता है, लेकिन दिन के वक्त सिर्फ धुआं निकलता है। ये दिन का वक्त था। मैंने देखा कि पहाड़ की ढलान पर 4 जगहों से गोले फायर हो रहे थे। इन चारों जगहों से फायर के बाद धुआं निकलता। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तोपें पहाड़ के चोटी से काफी नीचे एक लाइन में नस्ब की गई हैं और इन चारों के दरमियान मेरे हिसाब से ज्यादा 60-70 गज का फासला था, जो पहाड़ी जंगल होने की वजह से 100 गज भी हो सकता था। ये सारी बातें मैंने अपने जहन में बिठा ली थी और उसकी रोशनी में नक्शे पर कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान के लगाए हुए पेंसिल के निशानात देख रहा था। जब मैंने सारी पोजीशनें जहन में अच्छी तरह बिठा ली तो कमांडो लीडर शेरवान से कहा, मेरा ख्याल है हमें इसी वक्त अपने मिशन पर निकल जाना चाहिए। कमांडो लीडर शेरवान ने मेरे साथ एक कश्मीरी कमांडो कर दिया जिसका असल नाम कुछ और था। फर्जी नाम मैं जहांगीर बट रख देता हूँ। ये तरबियत याफ्ता कमांडो था और मेरी तरह जवान था। उस वक्त रात के 9-9:15 बजे का वक्त होगा। हमारे पास एक स्टेन गन थी, 8-8 ग्रेनेड थे। कमांडो चाकू मेरे पास भी था और ऐसा ही एक खास चाकू जहांगीर बट के पास भी था। जहांगीर बट तमाम पहाड़ी इलाकों से वाकिफ था। जिस वक्त हम अपने खुफिया ठिकाने से निकले तो रात तारीक थी, मगर बूंदाबांदी रुक गई थी। अखरोट और चनार के ऊंचे ऊंचे दरख्तों से अंधेरे में बारिश का रुका हुआ पानी टिप टिप कर रहा था। जहांगीर बट मुझे एक पहाड़ी के पीछे से निकाल कर एक छोटी सी वादी में ले आया। जमीन बारिश की वजह से गीली थी, मगर जंगली घास की वजह से फिसलन ज्यादा खतरनाक नहीं थी। वादी के दरख्तों का अंधेरा हमें कुछ नहीं कहता था। हम दोनों A1 कमांडो थे और अंधेरे में भी अपना टारगेट देख सकते थे। हम खुशी से चले जा रहे थे। इस किस्म के कमांडो मिशन पर जाते हुए खामोशी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्त हम एक दूसरे से एक आध बात सरगोशी में कर लेते। ज्यादातर हम अंधेरे में इशारों से काम लेते। हम वादी से निकल गए। अब वो पहाड़ हमारे सामने था जिसकी ढलान पर चोटी के करीब इंडियन आर्मी की किसी आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी 4 मीडियम तोपें डिप्लॉय कर रखी थी और जो कश्मीरी मुजाहिदीन को खास तौर पर हुर्रियत परस्त कमांडोज को सख्त नुकसान पहुंचा रही थी। जहांगीर बट चलते चलते रुक गया। वो झुककर कुछ देखने लगा, फिर मेरे करीब होकर दबी आवाज में बोला, दोस्त हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। हमने एक बरसाती पहाड़ी नाला अबूर किया। पानी हमारी पिंडलियों तक था, मगर बड़ा तेज रफ्तार। दूसरे किनारे पर जंगल का एक खुला तख्त आ गया। यहाँ कहीं कहीं अमूदी चट्टानें रात के अंधेरे में ऊपर को उठी नजर आ रही थी। जहांगीर बट इन जंगलाती पहाड़ी रास्तों का आदी था। हम चलते चलते एक खड्ड में उतर गए। ये खड्ड आगे जाकर एक तरफ मुड़ गई थी। वहाँ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। खड्ड में हम काफी देर तक चलते रहे। उसके दोनों किनारे दीवारों की तरह ऊंचे थे।
खट से बाहर निकले तो चिनार के दरख्तों के झुंड ऊपर को जा रहे थे। जहांगीर भट्ट ने आहिस्ता से कहा, दोस्त यहाँ से खतरनाक एरिया शुरू होता है, ये उस पहाड़ी की ढलान है जहाँ तोपें लगी हुई हैं। मैंने कहा, इन गन पोस्टों की गश्ती पार्टियां भी रात को जरूर गश्त पर होंगी। जहांगीर भट्ट ने आहिस्ता से कहा, हमें उनसे भी होशियार रहना होगा। चीड़ के दरख्तों का जंगल पहाड़ की ढलान पर जरा ऊपर जाकर अचानक खत्म हो गया। अब ढलान पर झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मैंने अंधेरे में एक जगह रुक कर ऊपर देखा। वही पहाड़ी ढलान थी जहां मैंने शुरू रात में तोपों को फायर करते देखा था, मगर काफी बुलंदी तक चली गई थी। हम एक दूसरे के दरमियान 5-5 गज का फासला रखकर झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, जहां गन पोस्टों की गश्ती टीम का कोई भी डोगरा फौजी हमें मिल सकता था। हम बड़ी एहतियात के साथ बगैर आवाज पैदा किए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में अंदाजे से दुश्मन की तोपों के बंकरों को पॉइंट आउट करना आसान नहीं था। जब हम तकरीबन पहाड़ की आधी चढ़ाई चढ़ गए तो मैंने जहांगीर भट्ट को अपने मुंह से एक परिंदे की हल्की सी आवाज निकाल कर रोक दिया। वो वहीं झाड़ी में बैठ गया। मैं टेक कर चलता उसके पास गया और सरगोशी में कहा, मुझे सिगरेट के तंबाकू की बू महसूस हो रही है। जहांगीर भट्ट ने सांस 2-3 बार ऊपर खींचकर फजा को सूंघा और आहिस्ता से बोला, लगता है गन पोस्ट के पेट्रोल पार्टी के आदमी आसपास ही कहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।